Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am also fine here. I am taking pleasure to summarize the adventure. This is the lesson number 7 from Hornbill of 11th class. And what a beautiful fiction. This is a science fiction. So I'm going to summarize in English and Hindi both the adventure. Once again, I would like to repeat over here the adventure from Hornbill 11th class, lesson number 7, written by Jayant Narlikar. This is a science fiction. Professor Gaitonde was a historian and he was a lecturer in Pune. He was traveling to Bombay by train. He had a plan to visit a big library to go through history books. He was thinking that after returning to Pune, he will have a long walk with his friend Rajendra Deshpande. Yeah, during his train journey, he saw an Anglo-Indian in uniform. This indicated the border of the British Raj. He saw their flag on the carriage then in Bombay. He happened to see the board of East India House. He was puzzled as this could be the event of 1857, maybe the history had taken a different turn. He saw the Forbes building. He entered the office to inquire about his son but could not find his whereabouts. Then he reached Town Hall Library. He wanted to see his own history books while going through the fifth volume of history. He happened to read about the Battle of Panipat. The victory was a great moral booster to the Marathas. It established their supremacy. Vishwarao, not Vishwarao, Vishwasrao, and his brother Madhavrao recognized the importance of science and technology. Gradually, they too were replaced by Mughals. India moved towards a democracy. He felt his investigations were complete. While looking for the accounts of the battle, he came across Bhau Sahebanchi Bakar. Bhau Sahebanchi Bakar. He hoped to see the truth. Absent mindedly, he keeps notes in one pocket and Bakar in another. Then comes the humorous incident of Azad Maidan, where he becomes a target for a shower of tomatoes, eggs, and other objects. After 2 days, Gaitonde narrated everything to his friend Rajendra Deshpande. He only told Gaitonde that he had met with an accident and was unconscious for 2 days. And he was unconscious for 2 days because of an accident. Now he was back to the world. He was familiar with Professor Proceed. Yes, the professor, he was able to produce the pages of Bakar. Rajendra tried to rationalize his experience on the basis of catastrophe theory of quantum theory. Gaitonde was making a transition. He was having an experience of two worlds at a time. He asked his friends why he had made the transition. Rajendra replied that one needed some interaction to cause a transition. He must be thinking about the battle of powers. The neurons, neurons in his brains acted as trigger. Finally, he admits that he had been wondering what course of history would have taken if the result of battle had gone the other way. Here, the summary of English gets over. Now I am switching over to Hindi summary, but before that I would like to remind you once again, don't forget to subscribe my channel, like and share to your friends so they will be benefited and you will also be benefited
after going through this summary, and you will find yourself much capable to find examination answers, question answers, and have a nice life. With this, I am switching over to हिंदी समरी। विद्यार्थियों, आपका हिंदी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको आज समराइज करने जा रहा हूँ द एडवेंचर, जिसका नाम है साहसिक कारनामा। जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखी गई है, फिक्शन है। हॉर्नबिल 11th क्लास से, 11वीं कक्षा से द एडवेंचर जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखी हुई लेसन नंबर साल हॉर्नबिल किताब से दी गई है। यह कहानी विज्ञान की काल्पनिक कथा है। प्रोफेसर गायतोंडे एक इतिहासकार थे और पूना में लेक्चरर थे। एक बार क्या हुआ कि वह ट्रेन से मुंबई का सफ़र कर रहे थे। उनकी योजना थी कि वह मुंबई के बड़े पुस्तकालय में जाएंगे, वहाँ पर इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे। वे सोच रहे थे कि वो वापस पूना जाकर अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे से लंबी वार्ता करेंगे। हाँ, अपने रेल के सफ़र में उनकी भेंट होती है एक इंग्लो इंडियन से, जो कि अपनी यूनिफॉर्म में दिखता है। यह इशारा था इस बात की तरफ कि ब्रिटिश राज की सीमा आ गई। उन्हें डिब्बे पर उनका झंडा भी बना हुआ दिखाई दिया। फिर उन्होंने मुंबई में ईस्ट इंडिया हाउस का बोर्ड दिखाई दिया। वो उलझन में पड़ गए। ये तो 1857 की घटना थी, तो क्या इतिहास ने पलटी मार दी क्या? उन्होंने वहाँ एक बिल्डिंग देखी जो कि फोर्ब्स की थी। उस ऑफिस में वे जानकारी करने के लिए गए। क्या जानकारी करने के लिए गए? अपने बेटे के बारे में। लेकिन वहाँ वो असफल रहे। यहाँ से दूसरी जगह पहुँचे। वो जगह थी टाउन हॉल लाइब्रेरी। वो देखना चाहते थे अपनी लिखी इतिहास की पुस्तकें, और इन पुस्तक का संस्करण पढ़ते पढ़ते 5वां संस्करण पढ़ने की नौबत आई तो वो पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो जीत हुई थी वो मराठाओं का काफ़ी उत्साहवर्धन करने वाली थी। इससे उनका महत्व बढ़ गया, प्रभुत्व बढ़ गया। विश्वासराव, उनके भाई माधवराव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना। धीरे धीरे उनकी जगह किसी और ने, मतलब मुगल शासक ने ले ली थी। समय बीतने पर भारत भी लोकतांत्रिक देश बन गया। उन्हें लगा कि उनकी जांच पड़ताल अभी अधूरी है। जब युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उन्हें भाऊ साहेबांची बाकर दिखाई दी। वो असली में जानना चाहते थे कि बिना विचार किए, बिना सोचे समझे वो नोट्स अपनी जेब में, वो बाकर दूसरी जेब में रख लेते। नोट्स एक अपनी अलग जेब में और बाकर दूसरी जेब में रख लेते। फिर आज़ाद मैदान के हादसा पर घटनाक्रम होती चली जाती है। उसके वे शिकार बन जाते हैं और उन पर अंडों, टमाटर इत्यादि की बरसात होती है। 2 दिन बाद ये सब बातें गायतोंडे अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे को बताते हैं। तो वे ही गायतोंडे को बताते थे कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। 2 दिन तक बेहोश पड़े रहे, अनकॉन्शियस, बिल्कुल होश नहीं ठिकाने पे। अब वे पलटकर उसी विश्व में आ गए जिसमें कि वे थे। प्रोफेसर उन्हें दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? बाकर के पन्ने और उनके अनुभव को। जो राजेंद्र थे, उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को पूरी विनाश वाली क्वांटम के नियमन की अवधारणा और अवधारणा से तर्क संगत करता है। गायतोंडे जो थे वो बिल्कुल बदली हुई स्थिति में आ रहे थे। उन्हें एक ही समय में 2 तरह की दुनिया का अनुभव हो रहा था। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? तो राजेंद्र का पानीपत की लड़ाई के बारे में अपने अनूठे अनुभव के दौरान गायतोंडे ने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में संक्रमण किया और शायद किसी अणु ने दिमाग पर असर किया। आखिर में उनको मानना पड़ता है और सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और सोच भी रहे थे कि अगर पानीपत के युद्ध का परिणाम दूसरा होता तो हमारा इतिहास किस प्रकार का होता।
तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आके ये हिंदी समरी, हिंदी सारांश समाप्त होता है। एक साहसिक कारनामा द एडवेंचर हॉर्नबिल से कक्षा 11वीं की किताब से जयंत नार्लिकर के द्वारा जो लिखी गई है, लेसन नंबर 7 की समरी यहाँ समाप्त होती है। इसके पहले कि मैं अपना कथन समाप्त करूं, मैं आपको हमेशा की तरह फिर रिमाइंड करना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको और भी नोटिफिकेशन समय समय पे आते रहेंगे।